Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to discuss the CAT 2023 slot 2. तो slot 2 के जो solutions हैं उसको हम discuss करेंगे and this is for the quantitative aptitude, that is QA section. So without wasting much time, we are moving to the first question. So you can see it was attempted by 16% and 70% was the accuracy. So what was the question? That for a real number x, 1 by 2 log base 3 to power x minus 9 log base 3 4 and log base 5 2 power x plus 17 upon 2 upon log base 5 4 are in AP. So we have to find the common difference. So for the AP, if there are three number ABC and they are in AP, so you must remember that B must be the average of the other two number. This is the first concept that is going to be used. And second concept is that for the log, if we have log base A and for example we have a number x, and similarly we have log base A, same number, and we have y, so I can take out the A from the numerator and denominator and I can write this form as log base y. So the number which is in the denominator will be the base and the number in the numerator will be the आर्ग्यूमेंट ऑफ द बेस. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो दिस इज़ अ सुपर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि यहाँ पे यूज़ होने वाला था. तो यूजिंग द सेम आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो इट इज़ सेइंग 1 by 2 and you can see we have the same base, so I can write log base 4 2 power x minus 9 and third number would be log base 4 2 power x प्लस 17 अपॉन 2. इज़ इट क्लियर? ठीक है. अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे सारा का सारा जो बेस है वो 4 बन चुका है, तो हम हाफ को कैसे लिख सकते हैं? तो वी मस्ट नो कि अगर हम यहाँ पे 4 लिखना चाहते हैं, दैट इज़ आई वांट टू राइट 1 by 2 इन द log base 4 form. So it should be like that, log base 4 and it is 4 into 1 by 2. Is it clear? Because when we have the same base and the same number, this is actually equals to 1. So log base 4 equals to 1 into 1 by 2, that is half. Okay, so log base 4 2 power x minus 9 and log base 4 2 power x plus 17 upon 2. Hopefully it is clear. Now if I want to use this, that is log base 4, so मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ log base 4 2 into 1 by 2. So this 2 may cancel out. So basically this is log base 4 2. Hopefully it is clear. Log base 4 2 power x minus 9 and log base 4 2 power x plus 17 upon 2. So now these three terms are in the same base and this in log. तो अभी हमको as I told you जो मिडिल नंबर है, that is log base 4 2x minus 9 should be equals to the average of log base 2 plus log base 4 2 power x plus 17 upon 2. And this is whole base 2, right? Whole base 2. Okay, so log a plus log b, I can use log a plus log b. For the same base I can write log ab and the base would be same. जो यहाँ पे base होगा वही यहाँ पे base आएगा. तो I can see we have the same base 4, so that would be log base 4 twice of 2 power x plus 17 upon 2 divided by 2, right? So log base 4 2 power x minus 9, और इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वी आर लेफ्ट विथ log base 4 2 into 2 power x plus 17 upon 2. आई एम गोइंग टू चेंज द कलर. सो इस 2 को हम पावर में ले जा सकते हैं. तो log base 4 2 power x minus 9 की पावर 2 log base 4 twice of 2 power x plus 17 upon 2.
So I have the same same log on the both sides, so I can cancel out. And what I'm going to do now, I can take 2 की power x equals to t. Okay, so if 2 power x equals to t, so the equation becomes that is t minus 9 whole square should be equals to twice of t plus 17 upon 2. Hopefully it is clear. You can check, that is twice of t plus 17 upon 2, so that I can find the value of t now, right? So this would be t square plus 81 minus 18t should be equals to 2t plus 17. So taking the terms to the same side, t square minus 20t and plus this is 64 equals to 0. So 64 के फैक्टर जो 20 आए, so I can say 16 and 4, so t minus 16 and t minus 4 equals to 0. So I have t equals to 16 and t equals to 4. So if t equals to 16, that is 2 power x equals to 16. So from here I can say x equals to 4. And similarly, if t equals to 4, then 2 power x equals to 4. So I can say x equals to 2 also. So we have two possible solutions, right? Now we have to find the common difference. So common difference is actually second term minus का first term, right? This is the common difference. So if I want to find the common difference, so second term would be log base 4 2 power x minus 9, that is log base 4 2 power x minus 9 minus log base 4, I have written log base 4, and that is 2. सो लॉग ए माइनस लॉग बी, एक्स की वैल्यू आपके पास 4 भी है 2 भी है, तो हम लगा के देख लेते हैं. लॉग बेस 4, अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, हाँ, इफ़ आई पुट पहले एक्स इक्वल्स टू 4 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 9 माइनस लॉग बेस 4 2. सो दिस इज़ गोइंग टू बी लॉग बेस 4, दैट इज़ 7 माइनस लॉग बेस 4 2. सो दिस वुड बी लॉग बेस 4 7 अपॉन 2, बिकॉज log a minus log b is equals to log a upon b. But some of you are thinking, sir, why we have not taken x equals to 2? Because if x equals to 2, so this would be log base 4 2 power x minus 9, and that is log base 4. This is 2 ka square minus 9, and that would be log base 4 minus 5, which is not possible. Because if you have studied about the log, you must know, if we have log base b a, then this a should be greater than 0 always, and b should be greater than 0, and also b must lie between 0 and 1. Means there are possible cases that b should be between 0 and 1, b should be greater than 1, and b cannot be 0. base cannot be 1. So these are some conditions जो हम बेस के बारे में जानना चाहिए, लॉग के बेस के बारे में. So on that behalf I can mark the log base 4 7 upon 2. So option number 3 is the right answer of this question. So one of the, I can say, typical question. But moving to the next question, that is question number 2 we have. So it goes like that: for some real number a and b, the system of the equations, we have the linear equations. So linear equations are given x plus y equals to 4 and a plus 5 x plus b square minus 15 y equals to 8 times of b. So has infinite many solution. So maximum possible value of ab we have to find. So if we have two linear equation, a1x b1y plus c1 equals to 0, a2x b2y plus c2 equals to 0, these are the two linear equation, and I want इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सो इसके 3 कंडीशन है, वो देख लेते हैं. अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, सो वी कैन से दिस इज़ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन बोले तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ये, हाँ, ये इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस. पहला, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इट मीन्स नो सॉल्यूशन.
or I can say these are parallel lines. And last we have third condition, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. These are infinite solution we have, and the lines are coincident line. So we have to use this condition. Okay, so let us solve this question. So the coefficient of x for the first equation is 1 upon a plus 5 should be equals to 1 upon b square minus 15, and it should be equals to 1 over 8b. So first of all I am going to use these two so that I can find the value of b easily. So from here b square minus 15 should be equals to 8b, and b square minus 8b minus 15 should be equals to 0. So I can say this would be and that is 3 5 is 15, or b square minus 15. So 15 के फैक्टर जो कि आपके पास 8 आए, so there can be b square minus 15, that is 8b. Oh, this is 4 actually. Oh, this is 4. So this would be 4 upon 8b. My mistake actually. This is 4 on the third term, 4. So this is going to be, just hold on, I am going to erase it. Okay, so I can write it as 1 upon 2b also. I can write 1 upon 2b also. So 1 upon b square minus 15 should be equals to 1 upon 2b. So b square minus 15 equals to 2b. So from here b square minus 2b minus 15 equals to 0. So this can be written as b minus 5 and b plus 3 after factorization. So b can be 5 and b can be minus 3. Okay, now I am going to use this and this also. So 1 upon a plus 5 should be equals to 1 upon twice of b. So putting the value of b equals to 5, so 1 upon a plus 5 should be equals to 1 upon 10. So from here a equals to 5. Similarly, if I want to put b equals to minus 3, so if b equals to minus 3, then 1 upon a plus 5 should be equals to minus 1 by 6. So from here I am going to write on this space now. Okay, so a plus 5 should be equals to minus 6. So a would be equals to minus 11, right? A would be equals to minus 11. So we have to find the maximum possible value of a into b. So what can be the maximum value? Maximum value will be positive, so I can say then b would be 5 and a would be 5. So maximum possible value would be 25, that is 5 into 5. So some of the student might think sir a equals to minus 11, but this is a negative value. So okay, there is one more possibility, just hold on. If a equals to minus 11 and b equals to minus 3, okay, I can have the maximum value also, that is plus 33, because both will be negative make it positive. So I'll mark answer as 33, not this one. So my answer would be 33. So hopefully you got the right answer, that is 33 is the correct answer for this question. Moving to the next question. So again, this is one of the finest question of the algebra, asking for the, it is saying, and before solving this question I would like to tell you something. If x plus 1 upon x equals to a, then x square plus 1 upon x square equals to a square minus 2. Similarly, if x minus 1 upon x equals to a, then x square plus 1 upon x square equals to a square plus 2. And next, if x plus 1 upon x equals to a, then x cube plus 1 upon x cube equals to a cube minus 3a. Similarly, if x minus 1 upon x equals to a, then x cube minus 1 upon x cube equals to a cube plus 3a. So these are some values जो कि आपको पता होना चाहिए. Okay. Moving to the question, that is, it is given x plus x8 plus 1 upon x8 equals to 47. So and we have to find power 9. So पावर 9 के लिए आपको कम से कम पहले पावर क्यूब तक आना पड़ेगा, देन ओनली आप 9 बना सकते हैं. तो हम एक काम करते हैं, इसकी पावर हाफ करते हैं. हाँ, 8 का हाफ करते हैं, तो 8 का हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 4. तो पावर 4 कैसे बनेगा? तो पावर 4 बनाने के लिए
मैंने बताया था पावर डबल होता है तो ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो अगर आप यहाँ से हाफ करना चाहते हैं तो ये आपके पास कैसे नंबर मिलेगा, देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ये पावर हाफ हो गया। तो आपको यहाँ पे 47 में अब 2 ऐड करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। सो x4 प्लस 1 अपॉन x4 शुड बी इक्वल्स टू, दैट इज़ 49 का रूट ये हो जाएगा 7। अगेन मैं इसका पावर हाफ करूँगा, इसका भी पावर हाफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। 7 में प्लस 2 ऐड करेंगे, रूट करेंगे, दैट इज़ 3 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अभी फिर से क्या कर सकते हैं हम, अगर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स करना है तो पावर मैंने फिर से हाफ किया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा √5, ठीक है। अभी हम पावर 1 पे आ चुके हैं। अब इस पावर 1 को हमको क्यूब करना है। सो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब शुड बी इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3a, दैट इज़ √5 का क्यूब माइनस 3 इंटू √5, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 5√5 माइनस 3√5, सो ये हो जाएगा आपके पास 2√5, सो दैट वुड बी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, राइट। नाउ वी हैव फाइनल सोल्यूशन। इसका भी फिर हम क्यूब करेंगे, इसको दोनों तरफ क्यूब करते हैं। तो क्यूब करने पर एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9, ये अगेन हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a, दैट इज़ 2√5 का होल क्यूब माइनस 2√5, सो दैट इज़ गोइंग टू बी, दैट इज़ 2 की पावर 3, 8 5 जो 40, 40√5 माइनस, ओके, सो 8 5 जो 40 एंड दैट इज़ 3 इंटू ए इंटू 3 भी करेंगे 6√5, सो फाइनली दिस वुड बी 40 माइनस 6 34√5। सो लॉजिकल था थोड़ा सा बट इट वाज इजी। सो इट वाज अटेम्प्टेड बाय 18% with the accuracy of 56%. So slot 2 was one of the toughest question of the CAT 2023 exam. Now again a very good question, logical question, so let us solve this question as well, right? So if n m be the two positive integers such that there are exactly 41 integer greater than 8 power m and less than 8 power n, so which can be expressed in the power of 2, so smallest possible value of m. Okay, so very good question. So we have 8 power m and we have 8 power n, right? So I can also write that is 2 power 3m also and 2 power 3n also, no problem in that. And we have to write 41 integers greater than this. So 41 integers आपको लिखना है यहाँ पे 41 numbers and all should be expressed as the power of 2. So this number would be equals to 2 की power 3m plus 1. Hopefully it is clear. The second number would be 2 की power 3m plus 2. So I am starting with 1, 3 power 1. So this 41st number, and that's 41st number should be equals to 2 power 3m plus 41. Hopefully it is clear, right? Now this is the 42nd number from the series. This is 42nd number. So this is the logic basically you have to identify. So I can say this is the 42nd number. So as per the series 2 की power 3m plus 41, this is the first number, this is 41st, and 42nd number 2 की power 3m plus 42, and as per the question this is also equals to 2 power 3n. Hopefully it is clear, right? Hopefully this is clear. So they have the same base, so I can compare the power. So 3m plus 42 should be equals to 3n. So I can say 42 equals to 3 n minus m. So from here n minus m equals to 14, right? And we have to find the possible value of n plus m, right? So and these are also saying the positive integers, right? Okay, so if we have n minus m equals to 14, so m की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है. सो n माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 14, तो n की वैल्यू 15 हो सकती है. So we have to find m plus n, and that should be equals to smallest possible value it is asking, and the smallest number positive is first actually m equals to 1, so this can be 16. So my answer would be 16, that is option number 3. So hopefully it is clear. Logical था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हो जाता. So again a good question, quadratic equation is asking. So we have a quadratic equation x square plus bx plus c equals to 0. It has two real roots.
if the difference between the reciprocal of the root, that is 1 upon alpha minus 1 upon beta, it is 1 by 3, and the sum of the reciprocals of the square of the root, that is 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, it is 5 by 9. So we have to find the largest possible value of b plus c. Very good question. So I can start स्क्वायर, इसको दोनों तरफ करते हैं स्क्वायर बोथ साइड. अल्फा स्क्वायर प्लस 1 upon बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा should be equals to 1 by 9. So I can say this value is given to you 5 by 9 minus 2 alpha beta should be equals to 1 by 9. So from here 5 by 9 minus 1 by 9 equals to 2 alpha beta. So 4 upon 9 equals to 2 alpha beta. This is red one, accuracy only 17%. So यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आएगी that is 18 upon 4 or I can say 9 upon 2. So this is the value of alpha and the beta, right? Okay. Now अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स देखते हैं, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द बी प्लस सी. सो अल्फ़ा प्लस बीटा should be equals to minus b and alpha beta equals to c. Okay, that is product of root and the sum of root, and we have to find the largest possible value of b plus c. Okay, so it is saying alpha beta is 9 upon 2, so this is 9 upon 2, so this is the max value of the c. Okay, no problem in that. Now I have to work on the alpha plus beta so that I can get the value of b now. So from where I can get the value of alpha plus beta? Okay, no problem. Okay, so it is given to us, I am going to write this one, that is 1 by alpha minus 1 by beta, it is 1 by 3. Okay, so from here I can get, from this equation, if I want to utilize this equation here, that is alpha square plus beta square upon alpha square beta square equals to 5 upon 9. No problem in that also. So from here alpha square plus beta square equals to 5 upon 9 into alpha square beta square. So alpha square plus beta square should be equals to 5 upon 9 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास 9 upon 2 है, तो आई कैन ऑल्सो राइट 81 upon 4, बिकॉज यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा 81 upon 4. सो यहाँ से 9 9 से 81, ये 45 upon 4 आ जाएगा. हाँ, दिस इज़ 45 upon 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 45 upon 4 आ गई है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो वी मस्ट नो दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा. नो प्रॉब्लम इन दैट. सो दिस इज़ 45 upon 4 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 9 by 2. So I can plug the value 9 by 2. So this is going to be 45 by 4 plus 9. So this is 9 4 36 plus 45 81 upon 4. So this is alpha plus beta का whole square, right? So alpha plus beta can be plus minus 9 upon 2. So I can say alpha plus beta can be 9 by 2 and alpha plus beta can also be minus 9 by 2 by the square, right? So we have to find the maximum value of b plus c. तो alpha plus beta दैट इज़ माइनस का b. सो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 9 by 2 लेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 by 2. और अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस का 9 by 2 लेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 9 by 2 का मतलब हो गया ये माइनस b के इक्वल है, तो यहाँ से b की वैल्यू 9 by 2 आ गई. नो प्रॉब्लम इन दैट. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस सी. हाँ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x b प्लस सी, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी, देन c is 9 by 2 actually, so 9 by 2 plus 9 by 2, so 18 by 2, or I can say 9. So this is my answer, that is 9 is the right answer of this question. So once again a very good question, logical question. Oh, one of the fantastic questions of the number system, that the sum of the first two natural number each having 15 factor including one and the number itself is. Okay, so we have to find the sum of the first two natural numbers each have the 15 factors. Okay, so when we have any number, I can represent that number in the prime factor, that is 2 power p, 3 power q, 5 power r and so on. So जो total number of factors आते हैं वो p plus 1, q plus 1, r plus 1 and so on, right? Now factors are given. अभी आपको factors given है, तो 15 factors given है. So 15 factors को आप मैक्सिमम केस वे में लिख सकते हैं p plus 1,
दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, और आई कैन राइट p प्लस वन q प्लस वन ऑल्सो 15 इक्वल्स टू मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑल्सो आई कैन राइट। बट हमको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 में जाना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 में जाना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ से p की वैल्यू देखते हैं तो p की वैल्यू आएगी 14। तो वो जो मिनिमम नंबर हो सकता है 2 की पावर 14, बट दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर एक्चुअली। सो हमको करना क्या है मिनिमम नंबर करने के लिए? यहाँ स्मॉलेस्ट बोलता है ना, तो 15 के प्राइम फैक्टर करिए, दैट इज़ 3 × 5। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 2 ब्रैकेट पे काम करना है, 2 ब्रैकेट्स पे काम करना है। तो हम 1 ब्रैकेट पे तो काम नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 इक्वल्स टू दैट इज़ 3 × 5। सो आई कैन से p कैन बी 2 और q कैन बी देन 4 और p कैन बी 4 एंड q कैन बी 3, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, अभी क्या करना है? सॉरी 3 नहीं आएगा यहाँ पे, p की वैल्यू 4 तो 1 है, ओके एक मिनट, 3 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा ये, ठीक है, q 2 आएगा। नाउ व्हाट आई हैव टू डू एक्चुअली, तो अगर हम किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई, p की पावर 2 और q की पावर 4। सो नंबर कैन बी, दिस नंबर कैन बी दैट इज़ 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 4, और यू कैन ऑल्सो से सर 2 पावर 4 भी हो सकता है और 3 पावर 2 भी हो सकता है। तो ये सबसे छोटा नंबर है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 81 इंटू 4 दैट इज़ 324, और ये हो जाएगा 16 इंटू 9 दैट इज़ 144। दीज आर द स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स, राइट, because I cannot split 15 as the product of 3 number, so maximum I can go with this. So sum would be 324 into, sorry not into, plus 144, so 468 is the right answer of this question. So maximum, that is 15% attempted but with the accuracy of 32%. So if you are new to the channel then you can subscribe the channel, because आने वाले टाइम में सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट फॉर द CAT 2024 एग्जामिनेशन, राइट। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली let n be a natural number such that 5 power n is less than 3 power n plus 1, right, and the least value of the m we have to find integer value. तो अगर हम 5 की पावर n माइनस 1 इज़ लेस दैन 3 पावर n प्लस 1, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं n इक्वल्स टू 1, तो दिस इज़ 0 इज़ लेस दैन ऑफ कोर्स 9 कब कैसे आएगा? 3 की पावर 1 प्लस 1। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 5 आएगा, और ये बचेगा आपके पास 3 की पावर 2 प्लस 1 दैट इज़ 27। तो ये भी करेक्ट है। तो ऐसे करते करते अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो ये बचेगा 5 की पावर 5 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 1, राइट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 5 पावर 4 एंड ये हो जाएगा 3 पावर 6। तो 5 पावर जो 4 है ये होता है 625, और 3 पावर 6 होता है 729। तो ये भी करेक्ट है। बट एज सुन एज आई पुट n इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, और ये हो जाएगा 3 पावर 7, तो ये हो जाएगा 2187, और ये हो जाएगा दैट इज़ 3125। अभी जो है वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो आई कैन से कि n की जो मैक्स टू मैक्स वैल्यू है वो 5 है इस इनइक्वालिटी को फॉलो करने के लिए। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। तो हमने ये n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, राइट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अगर मैं इसको देखता हूँ 3 पावर n प्लस 1 इज़ लेस देन 2 पावर n प्लस m, राइट। n की वैल्यू अगर 5 है तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1, और ये हो जाएगा 5 प्लस m, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस m। यहीं पे हमने गड़बड़ कर दिया था कल। आप इसको वीडियो को एक बार फिर से पुरानी वाली वीडियो देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये होता है 729। तो और ये हम चाहते हैं कि 2 की पावर समथिंग हो, बिकॉज ये भी इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र है, तो 5 प्लस m। सो आई नो कि 2 की पावर जो 8 होता है ये 512 होता है, और 2 की पावर जो 9 होता है वो होता है 1000। सॉरी, ये एक मिनट, कल भी हमने यही पंगा किया था, आज भी हम वही गलती नहीं करेंगे डेफिनेटली। 2 की पावर जो 7 होता है ये होता है 128, 2 की पावर 8 256 होता है, हाँ, रादर देन 512 256। 2 की पावर जो 9 है वो 512 होता है, एंड 2 की पावर 10 जो है वो 1024 होता है। नाउ आई वांट
कि ये वाला इनइक्वालिटी बड़ा तब होगा जब हम 729 से कोई बड़ा नंबर लेके आएंगे, और सबसे बड़ा नंबर जो 729 से यूजिंग द वैल्यू ऑफ m वो आ सकता है दैट इज़ 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 जब आप करोगे तो बाय द कंपैरिजन दैट इज़ 5 + m, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि 5 + m और ये 2 की पावर 10 है, तो आई कैन से यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। तो इट इज़ द राइट आंसर, m की वैल्यू 5 आएगी। सो मिनिमम जो वैल्यू है वो 5 आएगी। तो ये कल हमने यहाँ पे ब्लंडर किया था, हमने यहाँ पे 2 की पावर 8 को 512 लिख दिया था, इसलिए हमारा आंसर आई थिंक 4 आ रहा था। तो ये मेरा है, ये जो मैंने रेक्टिफाई कर दिया इसको। अभी हम आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यू कैन सी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था बोट एंड स्ट्रीम से। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन गोज लाइक इट, बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का थोड़ा सा मैं केस बता दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रीम है या रिवर है, इसकी स्पीड r मीटर/सेकंड है। तो एक बोट है जो कि इसी की डायरेक्शन में जाती है x मीटर/सेकंड से। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम टू सेम है, इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो स्पीड आती है डाउन स्ट्रीम की, ये दोनों को ऐड करने पर आएगा x + r। सिमिलरली अगर ये स्ट्रीम ऐसे है, बिकॉज स्ट्रीम अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये r मीटर/सेकंड है, बट बोट जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है दिस वे, y मीटर/सेकंड से। तो आई कैन से अगर ये y मीटर से जाएगा तो इट इज़ नोन एज द अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अगर ये अप स्ट्रीम है तो इसकी स्पीड होती है दैट इज़ y में से x को या r को माइनस करेंगे मीटर/सेकंड। y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन r, तभी ये पॉसिबल है कि बोट जो है इसके अपोजिट जा पाएगी, वरना बोट जो है हमेशा इसको, रिवर जो है इसको अपने साथ ही ले जाएगी। ठीक है, तो ये होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन का बोलता है कि A to B जाना है और A to B जो है वो डाउन स्ट्रीम है। इसका मतलब ये वाली जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम की है, जो रास्ता है A to B का वो डाउन स्ट्रीम है। एंड यहाँ से यहाँ तक A to B जाने में वो 2 घंटे लगते हैं। हाँ, और ये डिस्टेंस को हम डी अज्यूम कर लेते हैं। और B से वापस A आने में उसको लगते हैं 3 घंटे। ठीक है, तो ये राउंड ट्रिप हो गया, और अगर ये राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया तो इसने टोटल 5 घंटे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं ये बोट है हमारा, इसको हम बोट x मान लेते हैं। राइट, बोट x है। सिमिलरली बोट y एक और मान लेते हैं, जो यहाँ से चलती है बोट y, यहाँ से बोट x मान लेते हैं, ये बोट x मान लेते हैं। राइट, तो बोट y क्या करता है, वो B से A जाता है। हाँ, तो बोट जो y है वो पहले B से A जाता है, उसके बाद A to B आता है। तो पहले ये अप स्ट्रीम जाएगा और उसके बाद ये डाउन स्ट्रीम में वापस आएगा। तो इसको जो टोटल लगता है दैट इज़ टाइम B to A प्लस टाइम A to B, ये टोटल आपको दे रखा है 6 घंटे लगते हैं इसको, 6 घंटे। अब एक बात बताओ भाई, दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया, D जाने में D आने में। तो दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, D जाने में D आने में, इसका मतलब 2D डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो इसने 2D डिस्टेंस को 5 घंटे में ट्रैवल किया, इसने 6 घंटे में ट्रैवल किया। तो आई कम टू नो कि ये आपका स्लोअर बोट है। तो वाई जो है वो स्लोअर बोट है, इतनी तो जानकारी आपको हो गई होगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है स्लोअर बोट के बारे में। तो वाई इज़ अ स्लोअर बोट। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आई कैन से अपने PhD जब पढ़ा होगा, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर हम टाइम A to B और टाइम B to A देखते हैं, तो A to B मैंने बताया था ये डाउन स्ट्रीम है फॉर द बोट X, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम होगी और यहाँ से स्पीड अप स्ट्रीम होगी। ठीक है, और ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इन्वर्सली का मतलब क्या है कि जो डाउन स्ट्रीम है स्पीड वो नीचे आएगी, और जो, क्योंकि A to B का मतलब डाउन स्ट्रीम है, लेकिन टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, तो यहाँ पे आएगा स्पीड अप स्ट्रीम। तो ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, तो मान लेते हैं बोट x की स्पीड x है और बोट y की स्पीड y है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम r मान लेते हैं। r मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ए टाइम A to B दे रखा है 2 और B to A दे रखा है 3। अप स्ट्रीम हो जाएगा r माइनस, सॉरी यहाँ पे बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी अप स्ट्रीम में, x माइनस r, ये हो जाएगा x प्लस r। तो यहाँ से 2x प्लस 2r शुड बी इक्वल्स टू 3x माइनस 3r, और आई कैन से x इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ r। ठीक है,
तो x इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ r हो गया। बहुत बढ़िया, मज़े आ गए। अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, हाँ डिस्टेंस होगा ए बी, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप अप स्ट्रीम की स्पीड ले रहे हो तो टाइम भी आपको अप स्ट्रीम का लेना पड़ेगा। तो अप स्ट्रीम की, या फिर आप इसको डाउन स्ट्रीम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेंगे तो यहाँ पे टाइम भी आपको डाउन स्ट्रीम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अप स्ट्रीम से सॉल्व कर लेते हैं। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस आर, और टाइम आपको दे रखा है अप स्ट्रीम का, दैट इज़ अप स्ट्रीम का स्पीड टाइम दे रखा है आपको 3 आवर्स। हाँ, ये जो है वो 3 आवर्स है। x की वैल्यू 5 आ रही है, हो जाएगा 4 आर इंटू 3, ये 12 आर। मतलब जो डिस्टेंस है वो 12 आर है। कितना है डिस्टेंस, 12 आर है। तो ये हमने सिर्फ बोट x को देखा। अभी हम बात करते हैं बोट y के बारे में, जो कि b से चलना शुरू करता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आई कैन से बोट y को देखते हैं। हाँ, बोट y कहाँ से चलता है, b से चलता है। हाँ, बोट y इज़ गोइंग फ्रॉम b टू a, तो ये b टू a चलता है, ठीक है। इसकी स्पीड को हमने y अज्यूम कर रखा है, और रिवर जो है वो इस तरफ चल रही है r की। तो ये वाला जो पहला पाथ है ये अप स्ट्रीम का है, और जब ये वापस आएगा ये डाउन स्ट्रीम में आएगा, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो टाइम इसको टोटल दे रखा है b टू a जाने में प्लस a टू b जाने में, ये आपको टोटल 6 आवर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d डिस्टेंस क्या है और स्पीड कितनी है, y माइनस आर प्लस, अब ये a टू b जब आ रहा है तो डिस्टेंस तो d ट्रेवल किया है, लेकिन स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा इसका, y प्लस आर। और ये 6 दे रखा है, तो d यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई प्लस आर प्लस वाई माइनस आर, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। डी की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करी थी, डी वाज कमिंग आउट टू बी 12 आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 आर इंटू 2y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 6 के इक्वल है। तो आई कैन से यहाँ से 24 आर वाई इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 6 4 जा 24, तो वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस का 4 आर वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज यहाँ पे y जो है वेरिएबल है तो इसकी पावर 2 है, और यहाँ पे जो कॉफिशेंट आ रहा है दैट इज़, अगर हम y को वेरिएबल मानते हैं तो 4r आपका कॉफिशेंट माना जाएगा। ये r में भी क्वाड्रेटिक है बिकॉज r की पावर 2 है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हर टर्म की जो डिग्री है वो कांस्टेंट रहे, तो उसको होमोजीनियस। तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो y और r दोनों में है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं y, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इन y मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ रूट्स निकालने का, y इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट d अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से पहले d कैलकुलेट कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का मतलब हो गया दैट इज़ ये वाला कंपोनेंट माइनस 4r का स्क्वायर, क्योंकि हम y को वेरिएबल मान लें। 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है आपके पास माइनस का r स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 16r स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा 20r स्क्वायर। तो रूट डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2√5r, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज़ माइनस b करेंगे तो ये हो जाएगा 16, सॉरी नॉट 16, 4 आएगा, राइट 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 4r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का 2√5r अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2r प्लस माइनस √5r अपॉन 2, ठीक है। तो बेसिकली जब आप 2 कॉमन लोगे ऊपर से तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस √5r, ठीक है। तो ये आपके पास y की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कैसे y की वैल्यू आएगी, y इक्वल्स टू 2 प्लस √5r और y इक्वल्स टू 2 माइनस √5r, ठीक है। अभी इसको हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो √5 है, हाँ ये √5 इज़ ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ से हम इसको इग्नोर मार देंगे। क्यों इग्नोर मारेंगे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी नेगेटिव। भाई √5 बड़ा हो गया तो नेगेटिव, इसका मतलब y की जो वैल्यू आएगी 2 प्लस √5r आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन फाइनल करते हैं। आपसे बोलता है क्या कि टाइम टेकन बाय द स्लोअर बोट टू a टू b, हाँ a टू b जाने में कितना समय लगेगा। तो अगर मुझे टाइम टेकन चेक करना है स्लोअर बोट का a टू b जाने में, हाँ तो हमको अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं a टू b, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा 12 आर के बराबर, और उसका स्पीड कितना होगा दैट इज़ y प्लस
आर हो जाएगा, क्योंकि वो जाना चाहता है कि इसमें डाउन स्ट्रीम में। तो y की वैल्यू आ गई है 2 + √5 और प्लस, ठीक है, और ये 1 कॉमन ले लेंगे और ये r हो जाएगा, क्योंकि r सब में कॉमन आ जाएगा। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 + √5। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, 3 - √5 और 3 + √5। तो ये हो जाएगा 12 × 3 - √5 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 - 4, 9 - 5 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12। तो फाइनली 3 - 3 √5, या फिर वी कैन से 3 × ब्रैकेट 3 - √5 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है। तो होपफुली इट इज़ क्लियर, ठीक है। अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 2020 वाज 1 लाख, ठीक है, तो 2020 में पॉपुलेशन है 1 लाख, एंड द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाय y% इन द फर्स्ट ईयर। तो y% से डाउन हो गई, तो आई कैन से दिस इज y% से डाउन हो गई। तो अभी पॉपुलेशन कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल a हो गई, उसके बाद पॉपुलेशन अगेन इंक्रीज़ हो गई प्लस का x%, और ये हो जाएगी 2021 में हो गया, ये 2022 में इसको b मान लेते हैं, ठीक है, b मान लेते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन इन द 2022 वाज ग्रेटर देन पॉपुलेशन इन 2020 एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ 10, ठीक है, एंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैजिक करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो जो b की पॉपुलेशन है वो 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है, हाँ, तो इट इज़ ग्रेटर देन, तो ये बोलता है कि हमसे 1 लाख से ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम इसको साइक्लिक वे में या सक्सेसिव देखेंगे, तो a की वैल्यू जो होगी, वो 1 लाख इंटू 1 - y/100 होगा, और जो b की वैल्यू होगी वो 1 लाख इंटू 1 - y/100, फिर ये इंक्रीज़ हो गया, मैं यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो गया, तो 1 + x/100, और यू आर सेइंग इट इज़ ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो 1 - 1 + x/100 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस का y/100 माइनस का xy/10,000, ये ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद x/100 माइनस y/100 इज़ ग्रेटर देन xy/10,000। तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, दैट इज़ 100x - 100y इज़ ग्रेटर देन xy, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ चुकी है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन आप पे दे रखी है, दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ 10, और y और x एंड x एंड y आर द 2 नेचुरल नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है कि x और y नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आपको दे रखा है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ 10। अब अगर फाइनल पॉपुलेशन बढ़ गई है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन y। तो डिफरेंस का मतलब है x - y जो है वो 10 दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y + 10। होपफुली इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो x की वैल्यू y + 10 हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 100x - 100y इज़ ग्रेटर देन xy, तो x की वैल्यू हो गई 10 + y, x की वैल्यू कितनी हो गई 10 + y, ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं। तो 100 × 10 + y माइनस का 100y इज़ ग्रेटर देन 10 + y इंटू y, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस का 100y माइनस का 100y इज़ ग्रेटर देन 10y प्लस का y²। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई कैन से 1000 इज़ ग्रेटर देन 10y, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले हाईएस्ट टर्म लिख लेते हैं y² + 10y, ठीक है। अभी देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मेरे को सबसे आसान लगता है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हाँ, कंप्लीट स्क्वायर द स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट है y का, इसको हाफ करो, तो इसको हाफ करना, तो इसको हाफ करने पर आपको मिलेगा 5, दैट इज़ 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा। अब आपको करना क्या है, प्लस का 5 जो आएगा, 5 इसका स्क्वायर आपको प्लस करना है, और इसका स्क्वायर ही आपको माइनस करना है, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी बिल्कुल। तो अभी शुरू की जो 3 टर्म्स हैं,
ये होल स्क्वायर बना लेंगी और इस 5 को मैं इधर लेके आ जाऊँगा, ये 1025 हो जाए ग्रेटर देन y प्लस, अभी हमने किसका स्क्वायर किया था 5 का, तो ये उसी का होल स्क्वायर बनेगा। और एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो पॉजिटिव है तो ये जो स्क्वायर बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो मैं इसको नेगेटिव लिखता, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अभी आपको सोचना है कि y प्लस 5 का होल स्क्वायर जो है वो 1025 से कम है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हाँ, y मैक्स कितना हो सकता है, तो y मैक्स जो जा सकता है, तो आई नो कि 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 33 का स्क्वायर होता है 1089। इसका मतलब यहाँ पे मैं y की जो मैक्स वैल्यू रख सकता हूँ, मैं 32 बनाना है मुझे, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 27 रख सकता हूँ। कितना रख सकता हूँ, 27। तो अगर y की वैल्यू 27 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 प्लस करेंगे तो 37 हो जाएगी, राइट। तो नाउ इट इज़ ईजी कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 27 हो सकती है। इससे अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो इनइक्वालिटी मेरा गलत आंसर बताने लगेगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 27 आ गई। तो अभी आपसे बोलता क्या है कि आपके पास पॉपुलेशन 1 लाख थी और आपने इसको 27% से डिक्रीज़ कर दिया, तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, दैट इज़ 73,000 बचेगा आफ्टर 1 ईयर। मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा चिपका दिया इसके ऊपर, तो 73,000 ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दैट इज़ 3 यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, बट आपको मैथमेटिकल भी आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आगे कहीं ना कहीं आपको फ्रेम या तो मॉक में या तो एग्ज़ाम में फिर से पूछ लिया जाए, आज नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको आना चाहिए। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इट वॉज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ, एक मॉन्स्टर प्रॉब्लम है बेसिकली, राइट। तो हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपके पास टाइम होता है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। हाँ, मैं इसको इससे सॉल्व करता हूँ। तो देयर आर 3 पर्सन, राहुल, रक्षिता और गुरमीत। इनकी एफिशिएंसी को हम मान लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी को मैं ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, राइट, नो प्रॉब्लम। तो पहला बोलता है वर्किंग टुगेदर दे टेक मोर देन 7 डेज। तो टाइम कितना होगा, दैट इज़ वर्क अपॉन इनकी एफिशिएंसी कंबाइंड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, मोर देन 7 डेज है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। T1 सिमिलरली T2 अगर ये मिल के काम करेंगे, कौन, राहुल और गुरमीत, तो राहुल की एफिशिएंसी ए है और गुरमीत की सी है, तो ए प्लस सी जो है वो लेस देन 15 डेज लेते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थर्ड वाला क्या कंडीशन है कि अगर हम थर्ड वाले को देखते हैं, जो वर्क है दैट इज़, ये बोलता है दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड फॉलोड बाय रक्षिता हु वर्क अलोन फॉर 3 मोर डेज टू फिनिश द जॉब, ठीक है। तो इन्होंने कितने दिन की वर्किंग किया है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं कैसे निकालूंगा इनका वर्क। देखो जो वर्क है यहाँ पे, तो जो वर्क है ये बोलता है इन्होंने 6 दिन मिलके काम किया, तो 6 दिन, इनकी एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे। हाँ, तो या पर यूनिट टाइम, एफिशिएंसी होता है पर यूनिट टाइम। अगर ये क्वेश्चन डे का है तो पर डे लिखेंगे, मिनट का होता तो पर मिनट, सेकंड होता तो पर सेकंड, वट एवर इट इज़, बट पर यूनिट टाइम होगा, राइट। तो 6 डेज़ इन्होंने वर्किंग किया मिल के, तो 6 ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 मोर डेज़ वर्किंग किसने किया है, दैट इज़ रक्षिता ने। तो रक्षिता की एफिशिएंसी बी है तो ये 3B हो जाएगा। तो फाइनली आई कैन से जो वर्क है दैट इज़ 6A प्लस 9B प्लस 6C, ठीक है। अभी ये वर्क आपके पास आ चुका है और 2 टाइम की इक्वेशन है, इनको पुट कर लेते हैं। तो अगर हम T1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6A प्लस 9B प्लस 6C अपॉन A प्लस B प्लस C इज़ ग्रेटर दैन 7, और A B C क्योंकि एफिशिएंसी है, सब लोग वर्क कर रहे हैं, ग्रेटर दैन 0, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डेफिनेटली कर सकता हूँ इनइक्वालिटी में। सो आई कैन से जो T1 आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6A प्लस 9B प्लस 6C ग्रेटर दैन 7A प्लस 7B प्लस 7C। तो आई कैन से ट्वाइस ऑफ B इज़ ग्रेटर दैन A प्लस C, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, दैट इज़ B जो है वो ग्रेटर दैन A प्लस C अपॉन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम T2 वाले पैरामीटर को देखते हैं, T2 को ये दे रखा है ना W, तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है, 6A प्लस 9B प्लस 6C अपॉन A प्लस C इज़ ग्रेटर दैन 15। इसका मतलब कितना हो गया, ये T2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6A प्लस 9B प्लस 6C इज़ ग्रेटर दैन 15A प्लस 15C, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 9B इज़ ग्रेटर दैन, ये हो जाएगा 9
भाई इसको 6 को इधर ले जाओगे 9 हो जाएगा, 6 को इधर ले जाओगे तो ये बचेगा 9a + 9c। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जो a + c है वो दैट इज़ b जो है वो बड़ा है a + c से, राइट। यू कैन सी b इज़ ग्रेटर देन a + c, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सही बात थी यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ये पता चला कि a + b जो है, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ b ग्रेटर देन a + c, और b जो है वो ग्रेटर देन a + c भी आ रहा है। 1 मिनट में फिर इसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ क्योंकि एरर ना हो जाए हमसे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 9b है और ये 15a दैट इज़ 9a हो जाएगा। ओके ओके ओके, देखो हम पंगा कर सकते थे बट हम बच गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी लेस देन की थी, तो ये लेस देन का साइन आएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, राइट। तो यहाँ पे बचेगा b इज़ लेस देन a + c, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा बेसिकली। तो ये इक्वेशन आपको पता चल गई कि b इज़ लेस देन a + c है। हाँ, b इज़ लेस देन a + c। सो b इज़ लेस देन a + c, ठीक है। अब ये बोलता है कि टाइम टेकन बाय द रक्षिता। हाँ, टाइम टेकन बाय रक्षिता, तो इसका टाइम निकालना है कितना नहीं हो सकता। तो टाइम रक्षिता कितना होगा भाई? वर्क अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ रक्षिता, यही तो होगा जब अकेला पर्सन काम कर रहा है। तो वर्क कितना करना है? 6a + 9b + 6c, और इसकी एफिशिएंसी b है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, b से डिवाइड करने पर ये पता चलेगा 6a + c अपॉन b + ये 9 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, देखो यहाँ से बोलता है क्या, अब इसको थोड़ा सा आपको मैक्सिमम मिनिमम करना है कि a + c जो है वो लेस देन ट्वाइस ऑफ b है। इसका मतलब अगर ये इक्वल होता, फॉर एग्जांपल अगर a + b इक्वल होता, मैक्सिमम अगर ये इक्वल होता, तो a + c की वैल्यू अगर 2b के इक्वल होता तो हमें इसको 2b अपॉन b + 9 करता। तो यहाँ से जो रक्षिता का टाइम आ सकता था, हाँ, वो 21 आता। हाँ, तो ये तब होता, ये तब होता जब a + c जो है वो ट्वाइस ऑफ b के इक्वल है, बट a + c जो है वो लेस देन ट्वाइस ऑफ b है। इसका मतलब जो टाइम ऑफ रक्षिता है, जो टाइम है रक्षिता का, वो लेस देन 21 आएगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। दूसरी कंडीशन के a + c ग्रेटर है। हाँ, a + c ग्रेटर है, तो a + c ग्रेटर दैन b के। तो अगर मान लेते हैं, हाँ मान लो, तो अगर a + c इक्वल होता b के, तो ये कितनी वैल्यू आती? दैट इज़ टाइम ऑफ रक्षिता। तो ये आता 6 अपॉन, मैं इक्वल मान लेता हूँ, ये 6b अपॉन b + 9, तो ये होता दैट इज़ 15, ये होता 15। बट ये तो बोलता है क्या, बट भैया a + c जो है वो बड़ा है। इसका मतलब यहाँ से जो रक्षिता का टाइम आएगा वो 15 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। 15 से क्या होगा? टाइम ऑफ 15 से ज़्यादा होगा। तो हमको ये बात पता चली कि टाइम ऑफ रक्षिता जो है वो 21 से कम है और 15 से ज़्यादा है। तो आपके पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या पूछा था आपसे कि रक्षिता का कैन नॉट कितना, तो 21 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यही मेरा आंसर है। 17 भी हो सकता है, 16 भी, 20 भी, क्योंकि इक्वलिटी क्या बोलती है, 15 से लेके 21 तक सारे आंसर पॉसिबल हैं। तो 16 भी आ जाएगा इसमें, 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा, 20 भी आएगा। तो जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लवली क्वेश्चन इट वाज, राइट। सो होपफुली यू अंडरस्टूड, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये एवरेज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको मैं बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मेट जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ, दैट इज़ सम एवरेज, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, उनका एवरेज लिखना है, और यहाँ पे सम लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देर आर 3 पर्सन ABC इन अ रूम, ठीक है। इफ़ D जॉइंस द रूम, द एवरेज ऑफ द पर्सन रिड्यूसेस बाई x kg। तो मान लेते हैं 3 आदमी हैं, इनका एवरेज A था, और ठीक है, इनका सम हो जाएगा 3A। अभी क्या किया है कि एक और पर्सन हो गया, अभी पर्सन हो गए 4, तो एवरेज जो है वो x से रिड्यूस हो गया, तो ये हो जाएगा सम 4A। भाई सम कितना होता है? सम होता है नंबर इंटू एवरेज, तो 4A - 4x।
तो यहाँ से यहाँ तक में हमने किया है भाई, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ पे पहले सम थ्री ये था, अभी 4a माइनस एक्स हो गया, तो 3a में d ने ज्वाइन कर लिया, तो अभी ये 4a माइनस 4x हो गया। तो आई कैन से d की जो वैल्यू है वो a माइनस 4x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इफ़ इंस्टेड ऑफ d e पर्सन ज्वाइन, तो अभी पर्सन तो 4 ही रहेंगे बट यहाँ पे e ज्वाइन करता, हाँ e ज्वाइन करेगा। द एवरेज ऑफ द पर्सन इन द रूम इंक्रीजेज बाई 2x kg, अभी ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, a प्लस 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस 2x। तो अभी ये सम कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4a प्लस 8x हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक में हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक में e ने ज्वाइन किया, हाँ e ने ज्वाइन किया, तो आई कैन से 3a प्लस e शुड बी इक्वल्स टू, हाँ 4a प्लस 8x। तो यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 8x, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ़ द वेट ऑफ e इज़ 12 मोर देन दैट ऑफ d, ठीक है, तो e माइनस डी का जो वज़न है, e माइनस डी, दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। तो e की वैल्यू है a प्लस 8x और d की वैल्यू है माइनस a माइनस का 4x, ये आपको 12 दे रखा है। तो यहाँ से 4x की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 kg। सो x निकालना था, तो 1 मिनट यार, कुछ पंगा तो नहीं करा, अच्छा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, अगेन पंगा हो गया यहाँ पे, तो ले पंगा, बट हम पंगा नहीं लेंगे यहाँ पर। तो दैट इज़ हो जाएगा आपके पास 12x। हाउ कम इट इज़ 12x, वो भी बता देता हूँ। देखो भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यार से, तो a प्लस 8x माइनस का a प्लस का 4x हो जाएगा ना, ये तो a से a मर जाएगा, तो फाइनली आई कैन से 12x की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू 1 kg आ जाएगी। सो 1 इसका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ईजियर वे बताऊँगा मैं, इसका लेंदी नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आप क्लास में बताता हूँ चीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में, हाँ चीटिंग इफ़ेक्ट, या फिर उससे भी पहले मैं बताता हूँ ओवरऑल इफ़ेक्ट, हाँ ओवरऑल इफ़ेक्ट, मतलब जो मल्टीप्लायर बोलते हैं अक्सर, मैं इसको इफ़ेक्ट के फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे 10% का इंक्रीज़ हुआ है तो हम इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका इफ़ेक्ट लिखेंगे, तो इफ़ेक्ट आपको जब भी लिखना होता है आउटपुट अपॉन इनपुट लिखना है, या फिर दैट इज़ रेवेन्यू, आपको कितना पैसा मिला और आपका कितना इन्वेस्टमेंट गया, ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब 10 रुपये पे आपने 1 रुपये कमा लिए, तो आपको 11 रुपये मिल गए इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, ओवरऑल इफ़ेक्ट ये होता है मार्कअप इफ़ेक्ट। आप मार्कअप कर सकते हैं, आप इसमें चीटिंग कर सकते हैं, आप इसमें डिस्काउंट लगा सकते हैं, और ये प्रोसेस आप कितनी बार भी कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करना, बिकॉज एक ही प्रोडक्ट पे आप बार बार कर रहे हैं, तो ये सक्सेसिव है बेसिकली, राइट। ये बोलता है मर्चेंट परचेज ए क्लॉथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, रिसीव 5 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ फ्री, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर फ्री मिल रहा, मतलब इसको मिल तो 105 रहा है, लेकिन पैसे इसके 100 के जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सेल्स द क्लॉथ एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर, ठीक है। इसको बेच कितने पे रहा है, 110 पे बेच रहा है, हाँ। तो 110 पे बेचने का मतलब है कि इसका इन्वेस्टमेंट 100 का है, लेकिन बेचेगा कितने पे, 110 में, ठीक है। भाई 10 रुपये यहाँ भी कमाना चाहता है वो। एंड चीट हिज कस्टमर बाई गिविंग 95 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ फॉर एवरी 100, मतलब पैसे आपसे 100 के लेगा, लेकिन सामान आपको 95 का देगा, दैट इज़ ये आपके पास रेवेन्यू हो गया ना भाई, 100 रुपये कमाएगा, 95 का कपड़ा देगा। एंड ऑल्सो इफ़ द मर्चेंट प्रोवाइड ए 5% डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आपसे 95 रुपीज़ लेगा, लेकिन सामान आपको 100 का देगा। भाई 5% ऑफ का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये की चीज़ पे आपको 5 रुपये ऑफ करने के बाद 95, तो आपको एज ए कस्टमर 95 देने पड़ेंगे, लेकिन सामान आपको 100 का मिलेगा। तो यहाँ पे शॉपकीपर को नुकसान होता है बेसिकली डिस्काउंट में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 21/20 इंटू 11/10, तो 200 कितना हो जाएगा, 31/200, ठीक है। तो आप ये देखोगे 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 231 आपको रिटर्न मिल गया, तो आपको 31 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 31 यूनिट का आपको 31 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, 31 का फ़ायदा 200 पर इंटू 100, तो 15.5% इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इससे आसान कोई भी आप इस सवाल को नहीं कर सकता, ये मेरा एकदम से चैलेंज है, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन का। अनिल मिक्सेस कोको विद शुगर इन द रेशो 3:2, ठीक है। तो कोको मिलाता है और शुगर के साथ में 3:2 में, हाँ दिस इज़ कोको एंड कॉफ़ी विथ शुगर इन द रेशो, ठीक है। तो इसमें अगर कॉफ़ी मिलाएगा तो इसको मिलाएगा 7:3 के रेशो में।
तो यहाँ पे शुगर को कॉमन कर लेते हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, क्योंकि भाई दो चीज़ों का कम अगर हमको मर्जर करना है तो शुगर को इक्वल कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपके पास हो जाएगा, दैट इज़ ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14। ठीक है, लेकिन एक और पंगा है इसके साथ में। पंगा क्या है वो बता देता हूँ, इसने बाद में मैंने पढ़ा है। उसको ए और बी को 2:3 में मर्ज करता है। ठीक है, दोबारा से करते हैं, देखो फिर से देख लेते हैं एक बार, वन मोर टाइम। तो यहाँ पे कोको है, एक मिनट, वी हैव कोको एंड वी हैव शुगर। तो ये जो रेशो है वो 3:2 में है। और एक और आपको दे रखा है, दैट इज़ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का जो है वो रेशो, कॉफ़ी विद शुगर 7:3 के रेशो में। तो यहाँ से अगर हम इनका टोटल देखेंगे, वही टोटल यहाँ पे 5 यूनिट्स का है, इनका टोटल 10 यूनिट्स का है। तो इनका मर्जिंग रेशो कितना है भाई, 5 और 10 का मतलब 1:2 में मर्ज हो रहे हैं। बट आपको करना है इसको किस रेशो में मर्ज, 2:3 में मर्ज करना है। तो अगर आपको रेशो चेंज करना है तो पहले इसकी क्वांटिटी को इक्वल कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, रेशो सेम टू सेम हो गया भाई, 10:10 मतलब 1:1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे, इसको 3 से करेंगे। तो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एडिशनल हमने 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड ये हो जाएगा 4 2 जा, दैट इज़ 4 2 जा 8। यहाँ पे हो जाएगा 8 3 जा मतलब 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा एडिशनली 21। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोको है वो 12 है, कोको 12, शुगर हो गया 17 और कॉफ़ी हो गया आपके पास 21। ठीक है, नाउ ही मिक्सेस सी विद इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क। ठीक है, तो भाई टोटल कितना हो गया, अगर हम इसमें टोटल देखेंगे तो 21 और 17 38, सॉरी 17 12 29 21 50। ठीक है, 50। और आपने मिल्क भी ले लिया जितना इन्होंने भाई टोटल है, तो ये टोटल मिल्क को मिला के हो गया 100। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना, तो 100 में 17 शुगर है भाई। अगर 100 में 17 शुगर है तो कितना हो गया, ये 17% हो गया सीधा सीधा। तो बहुत ही लल्लू सवाल था बट अच्छा कंसेप्ट था इसमें, राइट। चलिए, ये भी एक प्यारा क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर हैज़ ए स्टॉक ऑफ मैंगोज। ठीक है, मैंगोज है, एप्पल है, बनाना है, विद एटलीस्ट सब कुछ एक एक टाइप है, एटलीस्ट 1 है। एट द बिगिनिंग ऑफ ए डे ही हैज़ द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज 40%। ठीक है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। तो मतलब 5 अगर उसके पास टोटल फ्रूट्स हैं, 40% ऑफ द टोटल बोल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसके पास टोटल 5 फ्रूट है, हाँ टोटल, तो टोटल अगर 5x फ्रूट हैं तो यहाँ पे 2x उसके मैंगो होंगे। इसका मतलब इन दोनों को क्लब करके, एप्पल और बनाना को मिला के जो है वो 3x आ रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अभी क्या बोलता है, ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज। ठीक है, इसने हाफ मैंगो बेच दिए, इसका मतलब सेल कितना कर दिया इसने, x कर दिया भाई। ठीक है, तो बचा कितना बैलेंस, तो बैलेंस भी x बचा है अभी, क्योंकि 2x थे, x बेच दिया, x बचा है। एंड 96 बनाना बेच दिए। ठीक है, इसने 96 बनाना बेच दिए, 96 एंड 40% ऑफ द एप्पल। हाँ, तो 40% ऑफ एप्पल भी बेच दिए इसने। तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ हैविंग 50% ऑफ द फ्रूट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके पास 2.5 बचा है। तो ये अगर x है तो इन दोनों को मिला के अभी कितना आएगा, 1.5x। इतनी बात समझ में आती है, बहुत ही अच्छी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो x + 1.5 ये 2.5x हो गया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये टोटल आपके पास पहले 3x थे और अभी ये 1.5x है, मतलब 50% स्टॉक आपने बेच दिया है। हाँ, 50% स्टॉक आपने बेच दिया है। तो अगर हम एप्पल्स को थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, एप्पल्स को a मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3a - x। ठीक है, 3a - x, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 3x - a, तो 3x - a, क्योंकि टोटल 3x था, a में से एप्पल चले गए। तो इसमें 40%, हाँ अब देखो ये बड़ा प्यारा सा मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाला हूँ। ये सारा का सारा 40% एप्पल का मतलब कितना हो गया, 2/5। तो अगर हम इसको 5k अज्यूम कर लेते हैं, हाँ 5k, तो आपने 2x
2k बेच दिए तो ये बचा कितना, ये 3k बचेगा। होपफुली इट इज़ क्लियर, ये 3k, ठीक है। तो ये बैलेंस जो a की वैल्यू 5k हो गई थी हो जाएगा 3x माइनस 5k। और ये कितना बचेगा, अभी 96 बनाना बेच दिए तो ये बचेगा 3x माइनस का 5k माइनस का 96, ठीक है। ये आपके पास बचे हैं अभी, दैट इज़ बनाना। तो इन सबको मिला के, हाँ इन सबको मिला के ये 50% होना चाहिए, राइट। तो ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे 50% है, तो हमको मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी है। हाँ हमको इसकी पूछा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, राइट। तो चलो इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि इन सबको मिला के भाई इतना ही आना चाहिए 2.5x। इसका मतलब क्या है, एक मिनट, कि x जो बचा हुआ मैंगो है प्लस अभी ये कितना बचा है 3k प्लस, भाई 3k एप्पल बचे हैं प्लस बाकी कितना बचेगा आपके पास। अगर मैं एक काम करता हूँ भाई, अगर एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ 3x माइनस का 5k माइनस का 96 इक्वल्स टू 2.5x, यही तो बचेगा। तो x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4x। कितना हो जाएगा 4x प्लस 3k माइनस 96 इक्वल्स टू 2.5x। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3k माइनस 96। तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.5x, भाई 2.5 को इधर लेके आएंगे हो जाएगा 96 माइनस 3k। तो x की वैल्यू हो जाएगी 96 माइनस 3k अपॉन 1.5। तो 1.5 का मतलब है कि हम इसको ऊपर डेसिमल हटा के 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 960 अपॉन 15 माइनस का 30k अपॉन 15। तो ये हो जाएगा 1564। तो 64 माइनस का 2k, ठीक है 2k। तो आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल आपके पास कितना था 5x था, तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 5 माइनस का, और ये हो जाएगा 10, भाई 5 से मल्टीप्लाई करें 10k, ठीक है। तो 320 माइनस, एक मिनट कुछ तो हमने पंगा कर दिया है। तो यहाँ से जो 5x की वैल्यू आ रही है 320 माइनस 10k। तो k की मिनिमम वैल्यू 1 लगा सकते हैं तो ये होल नंबर आ जाएगा। बट हमको एक बार अपना प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। ये आपने 5x, एक काम करते हैं इसको हम दूसरे एक तरीके से और कर देते हैं, ठीक है। देखो कैसे कर सकते हैं। आपके पास 3k तो हो गए भाई, अगर हम इसमें एप्पल्स देखेंगे तो 3k अपने बचे हुए ना, एप्पल्स 5k थे टोटल। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर ये 3k है तो ये जो बचेगा आपके पास, जो बनाना बचेंगे, हाँ तो ये बनाना जो बचेंगे ये 1.5x माइनस का 3k बचेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, टोटल ये x है, ये 1.5 था। तो अगर 3k आपके एप्पल चले गए तो बनाना कितना बचेगा 1.5x माइनस 3k। तो अगर हम बनाना लिखते हैं दैट इज़ 1.5x माइनस का 3k, और ऊपर से बनाना कितने आ रहे हैं भाई, ऊपर से जो बनाना आ रहे हैं दैट इज़ ये आ रहे हैं ऊपर से बनाना 3x माइनस 5k माइनस का 96 इक्वल्स टू 3x माइनस का 5k माइनस का 96, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x को, तो 96 प्लस 2k इक्वल्स टू 1.5x। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 96 अपॉन 1.5 प्लस 20 अपॉन 20 छोड़ देते हैं अभी, इसको ऐसा लिखते हैं दैट इज़ 2 अपॉन 1.5, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 960 अपॉन 15 प्लस ये हो जाएगा 20 अपॉन 15
और के भी आएगा ना इसके साथ के, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 4/3 k। ये एक्स की वैल्यू है, बट आपको तो वैल्यू निकालनी है 5x की। हाँ 5x की, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 320 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20/3k। अब इसको इंटीजर वैल्यू करना है ना, तो k की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो आपको 3 लगानी पड़ेगी, 3। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 320 प्लस 20/3 इंटू 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू 340। तो 5x आपके पास इनिशियल थे, तो इनिशियल जो फ्रूट थे एंड दैट वाज 340। तो ये मेरा आंसर है 340, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन था दैट इज़ द जो नंबर ऑफ फ्रूट है दैट इज़ स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन द स्टोर एट द बिगनिंग, तो इट वाज 340। तो टाइम एंड वर्क में आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो वर्क होता है वो होता है टाइम, जो वर्क होता है दैट इज़ टाइम इनटू, जो वर्क होता है दैट इज़ टाइम इनटू एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर। मैन पावर का मतलब ये नहीं है सिर्फ मैन काम कर रहे हैं, इसका मतलब वीमेन भी काम कर रही है, बट ट्रेंड में उसको मैन पावर ही बोला जाता है। तो देयर आर 2 पर्सन, गौतम एंड सुहानी, ठीक है, गौतम एंड सुहानी आर द 2 पर्सन। तो अगर हम वर्क देखेंगे, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, टाइम 20 है, और लेट द एफिशिएंसी ऑफ गौतम इज़ g एंड दैट ऑफ सुहानी इज़ s। नाउ यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट दे रखा है, गौतम डज 60% ऑफ द यूजुअल वर्क। मतलब अगर गौतम 60% से काम करता है तो सुहानी को 150% से वर्क करना पड़ेगा ऑन दैट डे टू एग्जैक्टली मेकअप फॉर दैट। मतलब इसको सोचने वाली बात है कि इसने अपना 40% लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से इसको 50% एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सो आई कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि 40% ऑफ गौतम जो है वो 50% ऑफ सुहानी के इक्वल है। एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से गौतम और सुहानी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/4, और आई कैन से 5x/4x। तो यहाँ से अगर हम वर्क देखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, ये हो जाएगा 5x प्लस 4x इंटू 20, तो 180x। सो इट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैड टू बी कम्प्लीटेड। तो अब ये किससे करवाना है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर पर्सन। सो हुई द फास्टर पर्सन गौतम, बिकॉज गौतम की एफिशिएंसी 5x है। सो टाइम टेकन बाय गौतम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ गौतम। सो वर्क है टोटल 180x एंड एफिशिएंसी गौतम की दैट इज़ 5x के इक्वल। तो आफ्टर सॉल्यूशन विल बी गेटिंग 36 days। सो इट वाज द राउंड 1 क्वेश्चन, बहुत ईजी था, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे ज़रूर से आपको लगाना था। वीडियो पूरा देखा करो, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप सीखोगे कि किस तरह से हम सॉल्यूशंस को अच्छे से कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये रेशो क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है कि ए और बी दो रेशो, मतलब 2 कॉइन कलेक्टर है। ये पर वीक अगर हम इनके कॉइन्स की बात करेंगे, हाँ, नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय देम पर वीक। सो पर वीक, दिस इज़ पर वीक कलेक्शन। सो पर वीक जो है ये 3x मान लो कलेक्ट करता है और ये 4x करेगा। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम इसका 3 वीक का कलेक्शन देखेंगे, सो 3 वीक में बी ने कलेक्शन किया है मल्टीपल ऑफ 24। तो बाय द अगर हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग जाएगा, अगर वो 1 वीक में 4x करता है तो 3 वीक में 12x करेगा। एंड सिमिलरली अगर हम 5 वीक का कलेक्शन देखेंगे, क्योंकि 5 वीक की इंफॉर्मेशन इट इज़ गिवन फॉर ए, तो इट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 7। वो बाद में देखेंगे, बट ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे तो 5 वीक में 15x करेगा। नाउ अब जो कंडीशन है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो ये बोलता है मल्टीपल ऑफ 7, भाई ये तो है ही नहीं मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि 15 में तो 7 आता ही नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 7 ये तब होगा जब व्हेन x इज़ मल्टीपल ऑफ 7। भैया x में जब तक 7 नहीं आएगा वो मल्टीपल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो x है वो 7 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 3 वीक का जो कलेक्शन है बी का, इट इज़ गिवन शुड बी मल्टीपल ऑफ 24, लेकिन 12 तो मल्टीपल नहीं है 24 का। तो 24 तब बनेगा जब x इज़ मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे कम से कम x को 2 आना पड़ेगा, तब जाके 24 बनेगा। तो आई कैन से हमको एक कंक्लूजन मिला है कि भैया जो x है वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो कुल मिला के x जो है x 14 का मल्टीपल होना चाहिए।
किसका मल्टीपल होना चाहिए, 14 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भैया 14 का अगर ये मल्टीपल है तो आई कैन से यहाँ पे हम इसको 3 इंटू 14K ले सकते हैं, और यहाँ पे कितना ले सकते हैं, 4 इंटू 14K। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब ये बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन कलेक्टेड बाय ए 1 वीक, तो कितने करेगा भाई, यहाँ पे अगर हम 14 इंटू 3 देखेंगे दैट इज़ 42K, और ये मिनिमम तब होगा जब K की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी भाई। मिनिमम तब होगा जब K की वैल्यू 1, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन बाय ए, तो ये हो जाएगा 42। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, रेशियो का क्वेश्चन था ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ ज्योमेट्री प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ज्योमेट्री। हाँ, इसका ज्योमेट्री प्रॉब्लम है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन ये, ज्योमेट्री। तो वी हैव अ सेमी सर्कल। हाँ, दिस इज़ अ सेमी सर्कल, एंड दिस सेमी सर्कल वी हैव टू ड्रॉ लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल। तो भैया जो रेक्टेंगल बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा और कुछ इस तरह से बनेगा। ये इसका मिड पॉइंट है। रेडियस आपको 2 दे रखा, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये 2 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं इसकी जो सी वाली साइड है ए मान लेते हैं, दैट इज़ ब्रेड्थ। और अगर हम बाय द सिमेट्री देखेंगे तो ये बी है, तो ये भी कितना होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए। तो आई कैन से जो लेंथ हो जाएगी ये 2b हो जाएगी। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो अगर हम इसको एरिया को मैक्सिमम करना चाहते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, तो एरिया को हमको मैक्स करना है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज़ 2b इंटू ए। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आई होगी भाई, 2b इंटू ए। एंड अगर हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से अगर हम a या b किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो b स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर, और आई कैन से b शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखना चाहते हैं दैट इज़ एरिया, तो ये हो जाएगा 2b इंटू ए, और b की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो 2a इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस ए स्क्वायर। हाँ, 4 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको मैक्सिमम करना, हाँ इसको मैक्सिमम करना है। तो भैया मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं, इसको 4 को मतलब 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अंदर जाके ये हो जाएगा दैट इज़ 4 इंटू 4a स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर जब जाती हैं चीज़ें तो ये स्क्वायर होके जाती हैं, माइनस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू ए की पावर स्क्वायर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 16a स्क्वायर माइनस का 4a की पावर 4। ठीक है, 4a की पावर 4। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए a स्क्वायर को t अज्यूम कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 16t माइनस का 4t स्क्वायर, 16t माइनस का 4t स्क्वायर। ठीक है, 16t माइनस का 4t स्क्वायर। ठीक है, तो a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16t माइनस का 4t स्क्वायर। ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो से कि अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4t स्क्वायर माइनस का 16t। ठीक है, अच्छा अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अगर हम यहाँ पे इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वरना इसको आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए आपको इसको हाफ़ करना पड़ेगा, 16 का हाफ़ हो जाएगा 8। तो 8 को आपको दैट इज़ 8 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा दैट इज़ माइनस ऑफ 1 मिनट, यहाँ पे एक पंगा हो गया। पंगा क्या है कि जब इस मेथड को लगाते हैं, जब आप इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को लगाते हैं तो यहाँ पे कॉफिशेंट जो है वो एक्स स्क्वायर का या टी स्क्वायर का 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसमें, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका कॉफिशेंट 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको डिलीट करके हम दोबारा लिखेंगे, राइट। चलो, तो एक काम करते हैं, यहाँ से a इक्वल्स टू, हाँ तो हम यहाँ पे काम करते हैं, माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 4t। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस का 4t। तो बच्चे को पता है कि अगर यहाँ पे माइनस का 4t आ रहा है तो अगर मैं +4 और -4 कर दूँ तो ये जो 3 वाले टर्म है शुरू के, ये क्या बन जाएंगे, ये होल स्क्वायर बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे सर। तो आई कैन से दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस का 4 t माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4। होपफुली इट इज़ क्लियर।
तो अगर इस -4 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज हमने, ठीक है, तो -4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 16 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ t-2 का होल स्क्वायर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अच्छा, अब ये मैक्स कब होगा? ये मैक्स तब होगा जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मिन हो जाएगी, और ये मिन तब होगी दैट इज़ t=2 पे। भाई ये मिन हो जाएगी t=2 पे, तो एरिया आपके पास हो जाएगा दैट इज़ 16 माइनस का 4 इंटू t-2 का होल स्क्वायर, और इसको आपको ज़ीरो करना पड़ेगा, और ये ज़ीरो तब होगा दैट इज़ t=2 पे। तो a हो जाएगा √16, मतलब ये हो जाएगा 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू है t की वो 2 आ गई। तो t को आपने अज्यूम किया था कितना, a² आपने t माना था, और t की वैल्यू 2 आ गई, तो a² की वैल्यू आ गई 2, तो a कितना हो जाएगा √2, a की वैल्यू आ गई √2। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर a की वैल्यू √2 आ गई तो आपके पास ये भी कंडीशन थी, b = कितना था 4 - a², तो b कितना हो जाएगा 4 माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ से हमको ये पता चलेगा 4 - 2 दैट इज़ b भी हो जाएगा √2। ठीक है, b भी हो जाएगा √2। तो अगर ये दोनों ही √2 हो गए, हाँ, तो अगर ये दोनों ही √2 हो गए तो आपको वैल्यू निकालनी थी दैट इज़ b/a की वैल्यू। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है दैट इज़ √2। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, भैया लेंथ तो हो जाएगी 2b। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 2b, क्योंकि लार्जेस्ट लेंथ 2b है, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ √2। और b की वैल्यू भी कितनी होगी √2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2:1 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, 4 में दे रखा है। तो इसका आप एक और तरीका कर सकते थे, अगर आप करना चाहते तो इसको डिफ्रेंशिएशन से आप मैक्सिमा कर सकते थे, बट उन बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं है, तो इसलिए हमने इसको एल्जेब्रिक वे से सॉल्व किया है। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा अगर थोड़ी सी भी अलजेब्रा की नॉलेज आप रखते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ज्योमेट्री प्रॉब्लम, दूसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री का इसी स्लॉट में। तो इसने बोलता है कि ट्राइंगल आपको बनाना है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो हमने बना लिया ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABAC इक्वल है, AD इज़ द एल्टीट्यूड। हाँ, अब आपको एल्टीट्यूड बनाना है यहाँ पर, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। एंड B इज़ अनदर एल्टीट्यूड ऑन द साइड AC। ठीक है, तो ये BE हो गया, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O। नाउ AOB आपको दे रखा है, AOB दिस इज़ 105, राइट, दिस इज़ 105। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आपको बेसिकली AD का और BE का रेशो फाइंड आउट करना था। तो अगर ये 105 है, हाँ, अगर ये 105 है, अगर ये 105 है, तो ये भी 105 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम इसको देखना चाहते हैं, हाँ, ये एंगल कितना होगा, ठीक है, तो ये 90 होगा। ठीक है, तो बाय द क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है 360, दैट इज़ 90 + 90 + 105 प्लस इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, इक्वल्स टू, इसको हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस का 180 + 105 दैट इज़ 285। तो थीटा यहाँ पे 75 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये एंगल 75 डिग्री है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 75, क्योंकि अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। ठीक है, ये 75 हो गया, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, अगर हम आगे और इसको देखना चाहते हैं, तो ये 105 है, ये 90 डिग्री है। अब देखो ये 90 है और ये टोटल एंगल आपके पास 75 आ गया। हाँ, तो एक चीज़ आपको नोटिस और करने वाली है कि ये 75, ये 75, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा बाय द ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। और अगर ये वर्टेक्स एंगल 30 हो गया और ये 90 है, तो 90 30 160, सॉरी 120, 90 + 30 120, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये 60 होगा भाई, ऊपर वाला एंगल 60 होगा। और ये टोटल 75 है, तो इसका मतलब जो नीचे वाला एंगल है, हाँ, इसको मैं ब्राउन कलर से कोशिश करता हूँ बनाने की। ये जो एंगल मैं बना रहा हूँ, नीचे वाला डार्क कर दिया मैंने, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास हो जाएगा 15 डिग्री। होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी, क्योंकि टोटल एंगल 75 है। ठीक है, अब बस आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी है। आपके पास ये 15 डिग्री आ गया, हाँ, ये 15 डिग्री हो गया।
तो अगर मैं AD देखना चाहता हूँ, AD कौन से ट्राइंगल में आपको मिल सकता है, मान लेते हैं दोनों साइड्स जो हैं इक्वल, इसको हम AA मान लेते हैं। तो अगर हम sin 75 लगाते हैं कौन से ट्राइंगल में, BAD में, तो sin 75 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A। और सिमिलरली अगर आप BE देखना चाहते हैं तो BE मिलेगा आपको साइन, इसमें 30 में देख लेते हैं sin 30, तो sin 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर है BE और इसका हाइपोटेन्यूज कितना A। तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ sin 75 अपॉन sin 30, इट शुड बी इक्वल्स टू AD अपॉन BE। ठीक है, बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम sin 75, तो अगर आपको थोड़ी सी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जानकारी है तो sin 75 जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग cos 15 के इक्वल होता है। हाँ, तो आई कैन राइट ऑल्सो दिस इज cos 15 एंड sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू AD अपॉन BE, AD अपॉन BE। तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos 15, ये जो रेशियो है AD अपॉन BE का। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो AD अपॉन BE का जो रेशियो है ट्वाइस ऑफ cos 15। और भी तरीके हैं करने के लिए, बट मेरे दिमाग में ये भी आया है तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक तरह से वी कैन से मेंसुरेशन और वी कैन से ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है बेसिकली। देयर इज़ अ रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अब रेगुलर का मतलब क्या होता है, अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी वर्ड है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल हैं, इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रेगुलर वर्ड के साथ में। तो कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसके जो एंगल इक्वल होते हैं, अगर हम एंगल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो इसमें इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो इंटरनल एंगल जो होता है दैट इज़ 180 इंटू n-2, दैट इज सम ऑफ ऑल द एंगल डिवाइडेड बाई n, और ये होता है 360 अपॉन n, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये होता है रेगुलर के लिए। सो इन अ रेगुलर पॉलीगन एनी इंटीरियर एंगल एक्सीड द एक्सटीरियर एंगल बाय 120 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल बड़ा है एक्सटीरियर एंगल से 120 डिग्री से। हाँ, तो आई कैन से 180 n-2 अपॉन n माइनस 360 अपॉन n, ये 120 डिग्री के इक्वल है, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 60 कॉमन ले लेते हैं, तो एक 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 3 जा 18, 6 6 जा 6 2 जा, तो 3n माइनस का 6 अपॉन n माइनस का 6 अपॉन n इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ से n इक्वल्स टू हो जाएगा 3n माइनस का 12 इक्वल्स टू 2, तो 3n इक्वल्स टू, एक मिनट, 3n माइनस का 12 इक्वल्स टू 2n, तो n की वैल्यू 12 आ गई, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ साइड्स है 12 है। सो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने, अब डायगोनल निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, दैट इज़ अगर आपको डायगोनल निकालने हैं किसी भी पॉलीगन में, तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़, ठीक है, NC2। भाई आप डायगोनल अगर मान लेते हैं हमने ये हेक्सागन बनाया, तो इसमें कितने आपके पास डायगोनल्स बनेंगे, तो आपको डायगोनल बनाने के लिए किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ये हो जाएगा NC2। लेकिन वो दो पॉइंट ऐसे ना हो जो कि इन साइड्स को ज्वाइन करे, तो इसलिए नंबर ऑफ़ साइड्स को माइनस करेंगे। तो NC2 माइनस n डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो n का मतलब है नंबर ऑफ़ साइड्स, तो 12C2 माइनस का 12, तो 12C2 होता है 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 12, तो 66 माइनस 12 दैट इज़ 54 इज़ द राइट आंसर। तो 54 डायगोनल्स होंगे उसमें, तो ये इसका राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज़ बेसिकली फ्रॉम APGP। हाँ, तो ये APGP का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आइए इसको डिकोड करते हैं APGP, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन ये कि आपके पास कुछ ब्रैकेट्स दे रखा है और इनका सम एक्चुअली में फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज कर लेते हैं, तो पहला तो 1/1 तो अलग है, मैं 1/4 की मल्टीप्लाई कर लूँ, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस, कलर चेंज कर लेता हूँ, हमको 16 मल्टीप्लाई करना है, तो 1/16 प्लस 1/3 इंटू 1/16 प्लस 1/9 इंटू 1/16 प्लस, फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस वाले ब्रैकेट के लिए, तो 1/16 4 प्लस 1/3 इंटू 1/64 प्लस
1/9 इंटू 1/64 प्लस 1/27 इंटू 1/64 एंड दिस प्रोसेस इज फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अच्छा, अभी आपको नोटिस करने वाली जो चीज़ें उसको मैं नोटिस कराता हूँ। तो अगर हम इसको देखते हैं 1/4, 1/16, 1/64, तो दिस इज़ इनफाइनाइट जीपी। सिमिलरली अगर हम दूसरी टर्म देखते हैं ग्रीन कलर से 1/3, 1/3 इंटू 1/16, फिर 1/3 इंटू 1/64, तो ये भी इनफाइनाइट जीपी है। इसका मतलब सारी की सारी जीपी बन रही है। हाँ, दीज आर जीपी। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 को थोड़ा सा मैं अगर 4 के साथ में भी इंक्लूड कर लूँ तो कोई पंगा वैसे है नहीं। तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन, प्लस दूसरा ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं 1/3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपके पास 1/4, 1/16, 1/64, 1/256 एंड सो ऑन। तीसरा ब्रैकेट हम लिखते हैं यहाँ पे 1/9 कॉमन है। तो 1/9 के साथ में जो पहली टर्म आ रही है 1/16 की आ रही है। 1/16, 1/64, 1/256 एंड सो ऑन। एंड उसके बाद 1/27 से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो पैटर्न है ये फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न को हमको पकड़ना है। हाँ, इस पैटर्न को हमको पकड़ना है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है a/1 माइनस r। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो a है, और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है सब में, भाई सब में जो कॉमन रेशियो 1/4 का है, आप चाहें तो चेक कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 4/3। तो पहले ब्रैकेट का सम आ गया 4/3, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम दूसरे ब्रैकेट का सम देखते हैं तो 1/3 बाहर है यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट टर्म 1/4 है और इसमें 1 माइनस 1/4। तो ये आपके पास देगा 1/3 इंटू 1/4, और ये पलट के हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 1/9 बाहर आ जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म 1/16 है माइनस 1/4। तो अगेन ये आपको देगा 1/9, ये हो जाएगा 1/16 इंटू 4/3। ठीक है, एंड ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। नेक्स्ट पेज पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मतलब 4/3 मिला, फिर आपको मिला है 1/3 इंटू 4/3 इंटू 1/4। फिर आपको 1/9 मिला है, 1/9 में आपको 1/16 मिला इंटू 4/3 मिला एंड सो ऑन। तो अगेन आपको ये नोटिस करना है, क्या ये फिर से तो जीपी नहीं बन गया? हाँ, फिर से तो जीपी नहीं बन रही। तो अगर हम यहाँ से 4/3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? 1 प्लस 1/12 प्लस ये बचेगा 1/44, इसका मतलब, और ये बचेगा 1/44 इंटू 12 बचेगा एंड सो ऑन। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली, अगेन ये जीपी बनेगा विद a = 1 एंड r = 1/12। तो फाइनल आंसर इसमें 4/3 इंटू 1/1 माइनस 1/12, तो 4/3 इंटू 12/11। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। 16/11 इसका राइट आंसर है। तो बहुत बार जीपी इसमें बनाना पड़ेगा, एंड बाय द ऑब्जर्वेशन इट कैन बी डन ईजिली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। होपफुली इट इज़ क्लियर ऑल्सो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन, दिस इज़ फ्रॉम एपी एंड जीपी। तो ये कॉमन टर्म्स का बेसिकली क्वेश्चन था। आपको एक एपी दे रखा है, दैट इज़ an = 46 + 8n, और bn दे रखा है आपको 98 + 4n, और n की वैल्यू 100 या उससे कम होनी चाहिए। सम ऑफ ऑल टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीक्वेंसेस, राइट। तो अगर हम इसको पहली वाली सीरीज़ को देखते हैं, ए वाली सीरीज़ को, 46, 54, मतलब 8 का डिफरेंस है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस, फिर 62, फिर 70, 78, 86, 94, 102 एंड सो ऑन। अगर हम बी वाली सीरीज़ देखते हैं तो पहली टर्म इसकी 98 है, फिर 102, फिर 106, 110। तो आई कैन सी कि भैया पहली जो इसमें कॉमन टर्म है 102 है। तो अगर हम कॉमन एपी बनाते हैं तो इसकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 102 आएगी। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 एपीज़ कॉमन जो रहता है इसमें, दैट इज़ वो एलसीएम होता है D1 और D2 का, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम। तो इसका D कितना है?
इसका D8 है और दूसरे वाले का 4 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 और 8 का 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा इसमें 8 के डिफरेंस पे 110 आएगा, फिर 8 के डिफरेंस पे 118 आएगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि इसकी लास्ट टर्म कितनी होगी, हाँ इसकी लास्ट टर्म कितनी होगी, हमको कब तक रुकना है। तो अगर हम लास्ट टर्म को नोटिस कर पाते हैं तो यहाँ पे बोलता है एन जो है वो 100 को एक्सीड नहीं कर सकता। तो 100 को अगर एक्सीड नहीं कर सकता तो ये वाली सीरीज़ पहले कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो कंपैरेटिवली कम आएगी। इन द सेंस मतलब आप देख रहे हो ये 46 से स्टार्ट हो रही है, इतनी देर में इसकी 2 टर्म्स आई हैं, इतनी देर में इसकी कितनी टर्म आ गई, 3 4 5 6 7 8। तो हमको ये सोचना है कि हमको अगर मैं एन की वैल्यू को 100 रखता हूँ तो मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, हाँ तो मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। तो अगर हम ए वाली सीरीज़ को देखते हैं तो वी हैव स्टार्टेड विद 46 प्लस 8 इंटू 100, तो 864, हाँ 864 राइट। और अगर हम सिमिलरली बी वाली सीरीज़ को देखते हैं तो वी हैव स्टार्टेड विद 98 प्लस 4n प्लस 4 इंटू 100, तो आई कैन गो अप टू 498। इसका मतलब हम लोग सिर्फ 498 के बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्योंकि कॉमन अगर हम बात करेंगे तो भैया ये 864 और ये 498 पे जा रहा है, तो हमको कोई ऐसा लास्ट टर्म मिलेगा जो कि 498 के नज़दीक होगा, हाँ क्योंकि 498 के नज़दीक होगा। तो अगर हम कॉमन ए पी लिख पा रहे हैं तो इसमें पहली टर्म 102 आ रही है, फिर 110 आ रही थी, फिर 118 एंड सो ऑन। तो लास्ट में कितना आएगा, तो अगर हम लास्ट में इसको देखना चाहते हैं, अगर हम इसको लास्ट में देखना चाहते हैं तो लास्ट में क्या 498 इसमें आएगा नहीं आएगा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट में 498 है इसको चेक कर लेते हैं क्या आपके पास ये वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो आपके पास जनरल टर्म होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है होती है बिल्कुल। तो क्या 498 इसको सेटिस्फाई कर लेगा, देख लेते हैं। तो 102 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास 8, तो इसको माइनस करेंगे 396 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 8 4 जा 32 बचेगा 7 8 9 जा, ठीक है। तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कितना आएगा 8 9 जा 72 49.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो मैक्सिमम हम जो ले सकते हैं n की वैल्यू 49 प्लस 1, दैट इज़ n जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 टर्म हो सकता है। तो 50 का मतलब कितना हो गया, हाँ भाई n की वैल्यू 50। तो अगर n की वैल्यू 50 हो गई तो ये हो जाएगा, n की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो जो लास्ट टर्म आएगी इसकी, जो इसकी लास्ट टर्म आएगी हो जाएगी 102 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 102 प्लस 498 इंटू 8, तो 49 इंटू 8, तो 98 इंटू 4 392 प्लस 102, तो ये हो जाएगा 394, सॉरी 494। इसका मतलब 494 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो सीरीज़ बनेगी 102 110 118 494, आप चाहे तो चेक करके देख लेते हैं 494, ठीक है। तो 494 इसमें आएगा डेफिनेटली, कैसे आएगा देख लो भाई। अगर हम 494 को देखते हैं तो 494 माइनस का 102 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 8, तो ये आपके पास बचेगा 392 डिवाइड बाई 8, तो 8 4 जा 32 बचेगा 7 8 9 जा, ठीक है। तो n की वैल्यू 50। तो लास्ट टर्म आपके पास आ गई, कितनी आ गई लास्ट टर्म आपके पास 494। अब इनका सम करना है, हाँ सम करना है। तो सम निकालने का बड़ा आसान तरीका है सम ऑफ एन ए पी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ़ टर्म्स 50 हो गई, ठीक है। तो अगर आपको सम निकालना आता है ए पी का तो बहुत इजी होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ टर्म्स इनटू एवरेज ऑफ एन ए पी। और एवरेज ऑफ एन ए पी सबसे आसान है भाई। सम क्या होता है, सम होता है जब आपने एवरेज पढ़ा होगा नंबर ऑफ़ टर्म्स इनटू एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 494 प्लस 102 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली हो जाएगा 25 इंटू 596, हाँ तो 25 के 150, 15 दैट इज़ कैरी ओवर, 25 इंटू 9 225 प्लस 15 240, तो अगेन 24 कैरी, और 25 पंजे 125 और 24 125 और 24 हो जाएगा 149, तो 14,900 इसका राइट आंसर है। तो एज़ पर ऑप्शन
सी दैट इज़ ऑप्शन 3 करेक्ट है इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, राइट। तो ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन फंक्शन का इन्होंने फंसा रखा है कि एफ एक्स वाई एक फंक्शन है दैट इज़ एफ ऑफ 3x + 2y 2x माइनस का 5y इक्वल्स टू 19x, और आई कैन से 0y भी है भाई, 19x + 0y भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट हो जानी चाहिए। हाँ, इंडिपेंडेंट हो जानी चाहिए। तो कैसे वो इंडिपेंडेंट होगी? तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम किसी नंबर को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस नंबर को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आई कैन से a से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 3ax + 2ay, और ये हो जाएगा 2bx और माइनस का 5by, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x के कॉफिशेंट को देखते हैं, ये हो जाएगा 3a + 2b, और अगर हम y को देखेंगे प्लस 2a - 5b × y। तो बाय द कंपैरिजन आई कम टू नो कि आपके पास ये 19x + 0y लिखा है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो कंपेयर करोगे भाई, y का कॉफिशेंट तो 0 है, तो आई कैन से 2a - 5b = 0, और यहाँ से आपको ये पता चलेगा 2a = 5b, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर हम x का कॉफिशेंट चेक करेंगे तो x का कॉफिशेंट है यहाँ पे 19, हाँ, तो दैट इज़ 3a + 2b = 19। तो यहाँ से 2a की वैल्यू 5b है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2.5b, तो ये हो जाएगा 7.5b + 2b = 19, तो ये हो जाएगा 9.5b = 19। तो b की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। होपफुली इट इज़ क्लियर। b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 5 हो गई। तो हमने a और b बेसिकली ढूंढ लिया यहाँ पर। तो अभी जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है m और n की अगर हम टर्म्स में लिखेंगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? दैट इज़ आ गई आपके पास 5। तो ये जो है ये हो जाएगा 5m + 2n के बराबर। हाँ, 5m + 2n के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल था भाई, जो भी कोई फंक्शन था इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब ये बोलता है f ऑफ x2x, हाँ ये देखो, ये बोलता है f ऑफ x2x 27 होना चाहिए। तो x2x कैसे बनेगा? तो f ऑफ x2x, ठीक है, तो इसका मतलब ये 5x + 2 × 2x, तो ये हो जाएगा 9x, और ये वैल्यू आपको 27 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आएगी? 3। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। सो होपफुली दोस्तों you have enjoyed the solutions, and what you have to do, you have to subscribe the channel and wait for the CAT 2023। अब हम स्लॉट 1 के क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, वो भी क्वांट के। सो टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड एन्जॉय द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ में।